Jai Shri Mataji, everyone. We'll argue, discuss. What is there to argue in Sahaja Yoga? You have to take. That's the point. Is you have to take. There's nothing to argue. How much you take is the point. And the worst part is that they don't want to grow and they want to pull you down. So unless and until they are introduced to the idea of puja beforehand, then they start understanding the worth of puja. Otherwise they do not. How will they understand? This is beyond. So you should not make them attend any puja. Also seminars, I would say. Because seminars are meant for people who are intensively in Sahaja Yoga, intensify their awareness. Not for people who are half-baked, who are doubting Thomases, all this kind of people are absolutely useless. Never bring them to seminar. Whether it's your son, father, brother, mother, sister, husband, wife, nothing. You shouldn't bring anybody who is not fully awakened to Sahaja Yoga. Because seminars are meant for very intensive work. What I find always these people will argue with me. They are the first to question. They have something to say. They are the ones. Sahaja Yogis are keeping quiet in this. I don't mind even that. But what happens in the seminar? You have to receive home. They do not receive. Their attention is outside. They are disturbing everyone. So seminars are even in a way more important than an ashram. Because in ashram, there's no other problem but to fight them out. But here, in a new place we go, we have to fight out all surroundings. The place itself has to be cleansed. Everything has to be done. On top of that, you have these horrible people around you whom you have to convince. If they are not convinced, why are they here? Why did they spend so much money to come down? They have come here to disturb us. I'm sorry we had to do that way. I wish people could be simple, straightforward, uncomplicated, and sensitive. They are not. They are not sensitive people. They don't understand what are they up to. By that they destroy themselves, no doubt, but they destroy part of it. And also trouble me. Yesterday it was too heavy, you know that. Such a deep subject and it was too heavy for me. If they say they feel bad, all right, tell them we are sorry. There are certain points where we have to have our freedom to allow those who can come in. That's the point where we close the door. And there's nothing wrong in it. Because you have to equip more to pull them out. It has been always our practice. Since long, there's nothing new about it. Everyone knows, not only in England or any other place, even in India. We never allowed anybody to come for the puja. It was not realized. And who was not a surgeon. From the very beginning, wherever we tried that, we found it was very difficult. So I hope there's nobody sitting here with a doubting mind. If somebody is there, he should, with all sincerity, leave the hall and leave us alone for the ascent. Anybody who has doubts should be kind and generous about it. It's a very serious work we are doing. It's not of making money or of throwing an enterprise or building a house or something like that. It's not even just making creations of words. It's much more than that. It's a very serious work we are doing. And we don't want anybody to
got our attention. Even some of the Sahaj yogis I know are half-baked. Must be corrected. All right, doesn't matter, but they have been exposed to puja, so it will do them good, not bad. But some people are just anti-God, and they have allergies for God. Any work you start doing in the name of God, they're so allergic, they react. These are anti-God allergies. And they express themselves by different funny methods. Now, all the Sahaj yogis must know this. Then you will not go too far with them. You should discover this in anyone, this allergy existing. You should say, sorry, you have nothing to do. So that is what people who have to have the privilege of this version. Today is especially a great privilege because it was not so planned, but it worked out. Just worked out. Yesterday we did lots of cleansing. Now today tell your mind to rest for a while. Tell your thoughts to stop for a while and receive. Receive more of it. Everybody has benefited by this reception, but you have to receive more. There's a capacity within you. Puja, as I have told you many times, is not for my benefit, by any chance. I'm much better off without it. Because when the enthusiastic deities start emitting vibrations, you are asking. Because your saints, they're over enthusiastic. They are sitting there, busybodies, They're sitting quietly waiting for a chance. Emit vibrations to save you, so they want to just rush. They emit so much. Tell them, just wait. They want to save. They want to give you. They're so anxious in their anxieties. I like it. But you don't suck it. I have a problem. Once they have given, they don't want to take it back. You don't suck it. It has to go to the atmosphere. It has to disappear somewhere. It's directed towards you. You don't take it. So where does it go? It hangs into my shoes. So sucking should be more. Sucking should be more. And just before, I should say, Mother, be such that I suck of the divine. Just pray that with sincerity from your heart. Just say that. There's another beautiful gesture I have seen with this heart. It's very good. Both the hands on their heart like this and just press it, bending their head, asking, here's a vacuum. That's how they bow. It's very nice today. जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आप सबका सुबह के सत्र में बहुत बहुत अभिनंदन। अब हम अपने ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहले हम बैलेंसिंग करेंगे, उसके बाद हम चित्त से बैलेंसिंग करेंगे, फिर महामंत्र लेंगे, फिर श्री माता जी की एक वाणी सुनेंगे। ये वाणी श्री माता जी ने चलवाई और मेरे ख्याल सभी ने सुनी, और माँ जिसमें बहुत ही क्लियरली बता रही थी कि कोई भी सेमिनार या कोई भी पूजा उन सब के लिए है जो जानते हैं ये बात कि श्री माता जी आदिशक्ति है और बहुत ही गहरे उतरे हुए हैं, और जो भी आधे अधूरे हैं या जिनको अविश्वास है श्री माता जी के
आदि शक्ति होने में, तो वो एंटी गॉड है और उनको वहां नहीं रहना चाहिए। और एक सहयोगी का ये अधिकार है कि वो आ, ये कह सकें कि आप यहाँ से चले जाएं या इस सेमिनार में आप ना रहें। तो हमें ऐसे लोगों को नहीं अपनी कलेक्टिविटी में लेना चाहिए जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, डाउट करते हैं, प्रश्न पूछते हैं माँ के अस्तित्व के बारे में और पूजा पे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। और दूसरा माँ ने ये भी बताया कि जब हम कभी भी ध्यान करते हैं या पूजा करते हैं तो हमारी रिसेप्टिविटी कितनी अधिक है उस पर डिपेंड करता है कि जो देवी देवता प्रसन्न होते हैं माँ का ध्यान करने से और वो अपने वाइब्रेशंस छोड़ते हैं, तो हम उनको कितना अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हम रोज ध्यान के बाद कहते हैं कि यहाँ से इतना ये हमारा खुला हुआ हो कि ज्यादा से ज्यादा हम परम चैतन्य को अपने अंदर ले सकें। तो ये हमारी क्षमता है कि हम कितना ले सकें। परम चैतन्य तो अविरल बह ही रहा है श्री माता जी के श्री चरणों से। तो श्री माता जी कह रहे हैं कि जब ध्यान या पूजा या कुछ ऐसा होता है, सेमिनार होता है और वाइब्रेशन देवी देवता छोड़ते हैं, आप लोग उसको अपने अंदर खींचने के योग्य नहीं होते, तो वो वाइब्रेशन जब निकल गए हैं उनके पास से तो कहीं ना कहीं जाएंगे। तो वो जो माता जी के त्रिशूल माता जी के अंदर वापस चले जाते। तो ये माँ ने बताया। अब हम सब शांत हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, जगह का चुनाव कर लेना, एकदम शांति से बैठ जाएंगे, ले जाएंगे। कोई चल विचल नहीं, कोई हलचल नहीं, ना शारीरिक ना मानसिक। एकदम स्थिर करें अपने चित्त को, विनम्र हो जाए, आंखें बंद, कोई विचार नहीं, डोंट थिंक। ये समय परमात्मा से मिलन का है, इसको बिल्कुल नहीं गवाना है। हम बैठे हुए हैं, एकदम शांत हो जाएंगे, दिल दिमाग शरीर से पूरी तरह यहीं पे आ जाएंगे। एकदम शांत, डोंट थिंक, डू नॉट थिंक। आंखें बंद। श्री माता जी से विनती करेंगे कि परम पावनी माँ, कृपा करके आज आप हमें ध्यान की उन गहराइयों में ले जाइए माँ, जिनमें आप हमको ले जाना चाहते हैं और एक सहज योगी को आप प्रदान करना चाहते हैं माँ। श्री माता जी, आप आज मुझे ध्यान की वो अवस्था प्रदान करिए जो आप मेरे को प्रदान करना चाहती हैं माँ। हम आपका ध्यान करना चाहते हैं श्री माता जी, कृपा करें श्री माता जी। अब हम लेफ्ट हैंड खोलेंगे, राइट हैंड पृथ्वी पे रखेंगे, या अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो पृथ्वी की तरफ राइट हैंड को कर देंगे और माँ से विनती करेंगे कि परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के बाएं भाग में वो सभी अधूरी इच्छाएं जो मेरे किसी भी जन्म से आती हैं या मेरे इस जन्म में जो भी अपूर्ण इच्छाएं हैं माँ, जिनको आप पूरा नहीं करना चाहते हैं, ऐसी सभी इच्छाओं को आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए माँ। श्री माता जी, मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी अतिशय ठंडक है, आलस्य है माँ, मेरे पूर्वजों के कर्मों के बंधन है, मेरी आनुवंशिकी बीमारियां हैं, कि परम पावनी माँ, उन सब को आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए।
विलीन कर लीजिए श्री माता जी। एकदम हृदय से बोलेंगे, नहीं तो ये क्रिया घटित ही नहीं होगी। मां, कृपा करके मेरे शरीर के बाएं भाग में आप अपने श्री महाकाली स्वरूप का आशीर्वाद प्रदान करें श्री माता जी। प्रदान करें श्री माता जी। प्रदान करें श्री माता जी। अब क्रिया आरंभ हो गई। श्री माता जी का कार्य शुरू हो चुका है, महसूस कर सकते हैं। और ये जानने के लिए कि ये घटित हो रहा है या नहीं, हम अपने लेफ्ट हैंड पे चित्त देंगे। और जैसा कि हम पहले भी करते रहे हैं, जहां भी चित्त हम देते हैं वहां हमें घड़ी की सुइयों की दिशा में चित्त को गोल घुमाना होता है। और लेफ्ट हैंड की हथेली पे हम 3.5 गोले अपने चित्त के माध्यम से बनाएंगे। पूरा चित्त लेफ्ट हैंड के ऊपर, हथेली के बीचों बीच सहस्रार चक्र है हमारा। यहाँ पे 3.5 गोले बनाएंगे चित्त के माध्यम से। 1, 2, 3, 3.5। बहुत सुंदर। अब हम अपने अंगूठे की तरफ चित्त को ले जाएंगे। देखिए क्या माँ का कार्य आरंभ हो गया। क्या मेरा बायां स्वादिष्ठान श्री माता जी स्वच्छ कर रहे हैं। महसूस करेंगे। अंगूठे पे चित्त को रखेंगे। ये निर्मल विद्या का स्थान, प्योर नॉलेज। अपने अंगूठे पे चित्त को रखें। अपने ही अंदर उतरना है, कहीं भी नहीं जाइए। डोंट थिंक, जस्ट गो डीप विद इन योर सेल्स। अपने ही अंदर चित्त ले जाना है। हथेली के ऊपर चित्त, अंगूठे के ऊपर चित्त। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। इसके आगे वाली उंगली पे चित्त को ले जाएंगे। ये हमारी बाईं विशुद्धि है। देखिए इस उंगली को, विशुद्धि की। बंद आंखों से चित्त पूरा इस उंगली। आगे वाली उंगली पे चित्त। ये हमारी बाईं नाभि है, श्री गृह लक्ष्मी जी का स्थान है। चित्त को स्थिर करिए प्लीज। ये कलेक्टिविटी है। एक भी जने का चित्त इधर उधर होगा तो ये घटित नहीं हो पाएगा अच्छे से। बाईं नाभि पे चित्त, अपने ही अंदर जाइए। आगे वाली उंगली पे चित्त, बाईं आज्ञा। छोटी वाली उंगली पे चित्त, बाएं हृदय। बहुत सुंदर। अब राइट हैंड गोद में खोलेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ। आंखें बंद रहेंगी लगातार। अब माँ से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परम पावनी माँ, कृपा करके आप उन सभी क्रियाशीलता को, उन सभी कर्मों को अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए जो सफल नहीं हो।
माँ, जो आपकी इच्छा के अनुसार कर्म नहीं, ऐसे सभी कर्मों को आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, वो सभी कर्मी जो मेरे मानसिक और शारीरिक अति क्रियाशीलता से मेरे दाएं भाग में पैदा हो रही है माँ, ऐसी कर्मी को आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए श्री माता जी। विलीन कर लीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, श्री महासरस्वती जी की शक्तियाँ, आशीर्वाद आप मेरे शरीर के दाएं भाग में प्रवाहित कर दीजिए माँ। श्री माता जी का कार्य हो रहा है, इसकी अनुभूति लेते हैं। हम अपने चित्त को दाएं हाथ पे रखेंगे, हथेली के बीचों बीच चित्त को रखेंगे और चित्त को रखने का जैसा हमने सीखा है, 3.5 गोले बनाएंगे घड़ी की सुइयों की दिशा में, हथेली के बीचों बीच चित्त को रखा। पहला गोला 1, 2, 3, 3.5। अब हम अपने राइट स्वादिष्ठान यानी कि राइट अंगूठे पे चित्त को रखेंगे। एकदम एकाग्र कर लीजिए अपने चित्त को, अपने राइट हैंड के अंगूठे पे रखिए। राइट स्वादिष्ठान। आगे वाली उंगली पे चित्त, राइट विशुद्धि, ये मुझे मीठी वाणी देती है, ये मुझे मंत्रों को सही बोलने की शक्ति प्रदान करती है। राइट विशुद्धि। आगे वाली उंगली पे चित्त, राइट नाभि, धन वैभव संपत्ति राज लक्ष्मी। नाभि, आपकी राइट नाभि है। पूरे चित्त को एकाग्र करिए इस उंगली पे। चित्त शक्ति श्री माता जी है, श्री माता जी कार्य करने लगती है हमारी कुंडलिनी शक्ति स्वरूप हमारे अंदर से, जब हम कहीं भी चित्त को रखते हैं। तो हम चित्त को रखेंगे राइट नाभि वाली उंगली पे, मिडिल फिंगर है, इसके आगे वाली उंगली पे अब चित्त को लाएंगे, राइट आज्ञा है ये। आपके अहंकार को नष्ट कर देगी आपकी चित्त शक्ति। और छोटी वाली उंगली पे चित्त को रखेंगे, राइट हाथ, जो मुझे मर्यादाएं सिखाता है, जो मुझे जिम्मेवार व्यक्तित्व प्रदान करता है। चित्त रखिए राइट हाथ पे, बहुत वीक हो रहा है ये। पूरे राइट हैंड पे चित्त, लेफ्ट हैंड बहुत भारी हो रहा है, इसका मतलब बहुत सुंदर क्लियरेंस हो रही है। पूरे राइट हैंड पे चित्त, हाथ नीचे, दोनों हाथ गोद में रखेंगे।
माँ ने हमें बहुत सुंदर संतुलन दिया है और जिससे हम मध्य में अभी महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अब हम मध्य नाड़ी से चलेंगे, सुषुम्ना नाड़ी से मूलाधार चक्र के चित्त को रखेंगे। चित्त को रखने की प्रक्रिया वही रहेगी, जहां भी चित्त रखेंगे घड़ी की सुइयों की दिशा में गोले वहां पे घुमाएंगे, चित्त के माध्यम से गोले बनाएंगे। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, नाभि चक्र के चारों तरफ गोले बनाइए कि आपका पूरा भवसागर कवर हो जाए। बहुत सुंदर। मध्य हृदय में चित्त को लाएंगे। पूरा चित्त मध्य हृदय। प्रक्रिया नहीं भूलेंगे, 3.5 गोले बनाइए घड़ी की सुइयों की दिशा में। विशुद्धि चक्र में आएंगे। चित्त को एकाग्र रखिए। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। सहस्त्रार के लिए हम राइट हैंड से सहस्त्रार को ऐसे दबाएंगे और सर झुकाएंगे, गोल घुमाएंगे स्केल को 7 टाइम्स। माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, आपने हमारा आत्म साक्षात्कार किया माँ, हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया। आपको कोटि कोटि नमन श्री माता जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें हमारी आत्मा को जागृत किया, हमें आत्म साक्षात्कार दिया श्री माता जी। प्रेस करिए पूरा चित्त सहस्त्रार में हथेली के नीचे। हाथ नीचे रख लेंगे, चित्त पूरा हमारा सहस्त्रार देगी। 3 महामंत्र बोलेंगे और गणेश मंत्र बोलेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देव्यै नमो। ओम तमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी। श्री निर्मला देवी
नमो नमः गणेश ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। One who is just washing utensils morning till evening. How can she become a goddess? But people do believe that she's a goddess because she says so. And people are so simple and so dedicated that they believe. And yesterday, I was really touched the way they were sitting for all this time. For about 2 hours, they sat there. I don't think it's possible in any of your Western countries that I go after 2 hours and people are still sitting, not complaining, just waiting to hear me. That's not possible. We are so bound by time in the West that if you are late even by 5 minutes, they think they have a right to throw all the tea on your face. I mean, to them, time is so important. For us, it doesn't exist. If we have to go with the time, we cannot do Sahaja Yoga. Sahaja Yoga works spontaneously as a living process at the time it wants to work. And when I told them that I had to come late because the time had to come for a realization, they are very much reconciled to it, they understand this. So for them, it's very easy to understand that if mother is late, she has to be late. We cannot dominate her and we cannot ask her. But this kind of surrendering is only possible when you have that kind of a background, where for God, everything has to be surrendered. All your ideas, all your punctualities, all your compulsions. And thus, you see, the surrendering becomes very easy. Like I went to a place for little massaging and resting in Coimbatore. And when I was coming, I said I would like to give some present to this hospital. So the lady was massaging me. She said, no, not to the hospital, because they will all take it home. You see, they'll steal it. I said, then where should I give? She said, give it to the temple. I said, give it to the temple, they'll take it from there. No, they are afraid of God. They'll not take it from the temple. So this is something so great, in a place like Coimbatore where people are so materialistic that no, God's temple is God's temple. You cannot steal things from there because it will have punishment, which is true also. But but to believe in it and to think that way is in vain. So this is the beauty of an India. It's so innocent and simple. And I've told you the Britishers ruled us, and now these horrible so-called politicians are going to rule us and have been ruling us. The whole system is so wretched. I don't know how we are going to change it unless and until we jump into politics. So I cannot see any silver lining because they have no sense of humanity, no sensitivity left to that. Like I would say, as in the West, I find because they listen to this pop music, their limbic area is become so dull that they cannot like any music which is soft. In the same way, in India, these politicians have become so dumbfounded that they are not at all sensitive to humanity or to human sufferings. On the contrary, they use it for their own purpose. So this is a very big problem of this country, the poverty part. But Sahaja Yoga can solve the problem very well and slowly. But I think it is inevitable that we have to think of joining this wretched politics, so called, to put it right. As we have improved the people who have been so much negative, I'm sure this will also help us in this country and all over. Everywhere this is the case, not only in India. It's a different style, but everywhere this is the case is that they all take you for a ride. Now today I'm telling you this because Ramadasa was the guru of Shivaji. And he was the man who was very detached. He was Harumana himself. And once he came to Shivaji's place, and Shivaji was so fed up with his people and with the whole administration and the way things were, he had made a chit saying that, oh my guru, I give you all my
property, all my lands, all my kingdom, everything at your feet, and you better look after it. And they put that shit in the, we have that cholis in the cloth sort of a thing. So he stood in the door and read it, and he said, "What? You given me everything." He said, "I'm a sannyasi and I don't know administration, but you can do everything the same way as you have been doing, but be detached about it. And to show that you are detached, you must use a waist under dhoti stuff, we call it, in a triangular manner it is made. You see that thing with the saffron color showing that you are detached and you are a sannyasi. That's how this flag came into being. So the entry of the politics has been in this country, entry into politics by Sakshatkari people or by incarnation has been there. Most of the incarnations have been kings, like we have got Buddha was a king, Mahavira was a prince, both were prince. Then we have got Rama, who was a king. Then we have got Sri Krishna, became a king. So the Aishwarya, the kingness has to be there, has to be a royal family, has to be, incarnation should be from a royal family. In India, that is the concept. But for Christ, we can say that he took birth in a very humble, simple way because he was Sri Ganesha. And Sri Ganesha was born in the same manner as Christ was born. So his style was very different because he was Sri Ganesha, he was holiness, he was auspiciousness, but he was Chaitanya. And Chaitanya can be born anywhere. But an incarnation who is otherwise in the Madhya Marga, in the central path, has to be on the Mahalakshmi line, has to be. But he is not in the Madhya Marga. He is Sri Ganesha born at Agachakra. So he need not have been, but he lived like a king. He is king of kings. So that sort of a thing he was. Above every other king, he was the king of kings. So that's how we have the people who have been doing something for the country, for their own generation, talking about it. In the same way, we had very great saints also from Confucius, and also you have seen Moses, Abraham, how they tried to remove poverty and slavery from people and to bring them to a free country. They worked very hard. So a Sahajogi is not a person who is just sort of lives without any connection with the society, with the politics, with all that is happening. He has to be seeing all those things that are happening. He must read newspaper, if not in the morning, in the evening time. Means he must know what's happening. He must put his attention to all these things. Only putting attention to things, it works out. I have done that all the time. Even Hitler lost his success because of that attention. So one has to know that you have an attention that can work, that can really create what you want. But you must keep your attention alert, not only limited to yourself, not only up to, say, India tour, or we can say up to bhajans, but must go beyond and put your attention everywhere. What's happening? Supposing you go to any other country, try to find out what's happening in this country, in that country, what's happening. Because now you are international people and you have to bother about everything that's happening in this world, because we have to change everything, we have to transform everything. It's a hazardous task, but I've done the biggest job is to create the roots for it. That you have become the sprouted people, or we can say the elevated people, the special selected people. And now you cannot live like other ordinary stupid people. You have to be alert. You have to understand your responsibility. And every Sahajogi in this tour has to take a vow that I have to be responsible for surgery. Something is also with marriages I've seen, that people once they get married, they get lost. Something so stupid it is, very, very stupid. You are specially selected people and you have to work for Sahaja and you have to work for what you have got into. And
Those who do not take the responsibility of Sahaja Yoga are really lacking in self-respect and understanding of Sahaja Yoga. We all have to work wholeheartedly for Sahaja Yoga and be happy about it that you have a chance, that you are fortunate enough, that you have a chance to do so much, that you have powers to do it. If as Christ has said, you do not light a lamp under a table, in the same way I didn't light you under a table. You all should mature, grow up, and see for yourself what you can do for any place, what improvements you can make, how far you can go. Take the responsibility. Yesterday you'll be surprised. A man came up to ask me a question. What should we do to spread such? Please give us ways and methods by which we can approach such. It's very surprising. Of course, I'm going to give them a big agenda for that, no doubt. I have so many ideas in my head, but you have to also think about what you can do in your own country, how to develop such yoga people, and how to put your attention to different problems that are in and to solve the problems. Because as I am a desireless person, it doesn't work. You have to desire for something that you want and genuinely desire for the genuine good of the people, for the hit of the people, and not for your personal thing. So you have to get out of your personal idea, your personal views, and your personal chakras. This is wrong with my chakra, that is wrong with another chakra. Doesn't matter. Once you make this body run for Sahaja Yoga, everything gets on. What's the use of curing or helping somebody's chakra when it's no good for Sahaja Yoga? Divine doesn't help such useless people. Divine has common sense. So this is what is very important for all of us, to take the responsibility of Sahaja Yoga in your own country and to pay attention to all countries wherever there is a problem. I'm doing this very much, and you can see that those people who post so much and who are so dishonest and who are trying to be very dominating suddenly go down, like Idi Amin. Then you've got this Marcos, so many people. But you also should pay attention. I read about 8 newspapers every day, and I see to it that I pay attention to all the proper places where it is needed. I wish I could be just like without any problems before me. But my incarnation is so many-folded that I have not only to give you realization, but also to give you responsibility that you have to do the job of transforming this world into a new world. And they asked me a question: whether do you think this will work out, that the golden age is coming? I said, I'm sure. In my lifetime, it has to work. But I cannot do it single-handed. It will fizzle out. You all have to help me. You have to work it out. Then only I can. So to think that Mother is going to do everything is wrong. I'm going to work through you. If I could have done it, I would not have asked to get your realization. So you are the channels, and you have to work out the whole system yourself. First of all, one has to know that it is our responsibility. As soon as you do that, all your badas, all your problems will go away. So take out your attention from yourself and don't put it on other surgeries, but put it on the wider, what we can do. Secondly, also, I've seen many people who are kind to non-surgeries and unkind to surgeries. It's something surprising. These are your brothers and sisters, and others have no relationship with you. This must be understood. Regarding certain problems, like some funny people enter into Sahaja Yoga, prosper, become leaders, and thrown out because they cannot give up their funny ideas. They're very limited and very small-minded attention. They cannot get out of it. So don't worry about such people. Thank God they have gone out, because they would have kept you in a little pot, and you would have been melting in that pot. So this is best is not to worry about such people. Thank God they are out, so that one more stupid bondage has gone. So don't think about those people who have gone wrong, but you should only take it as a kind of a
body, that you should not become one of them. Now, I'll speak to the people who understand Marathi language. जय श्री माता जी। चलिए जानते हैं कि माँ ने इस अमृत वाणी में हमें क्या बताया, ये हम जानते हैं हमने क्या ग्रहण किया इसमें से। शिल्पा। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। श्री माता जी ने सबसे पहले तो ये बताया कि खुद के लिए सीमित ना रहो, खुद के चक्रों पर ध्यान मत दो, उससे बाहर आओ, वो तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। एक आदि शक्ति पूजा में श्री माता जी ने ये बताया है और टाइम के लिए बताया है। टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट। आपको सब कुछ सरेंडर कर देना चाहिए, आपका कॉन्शियस सरेंडर करना चाहिए, फिर आइडियाज से आपको बाहर आ जाना चाहिए। इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बारे में भी बोला श्री माता जी ने कि ब्रिटिशर्स में बिल्कुल ही सेंसिटिविटी नहीं थी, तो उन्होंने बहुत बुरी तरह से रूल किया था। और पॉलिटिशियंस में भी ह्यूमैनिटी नहीं रहती है। लेकिन ये सब कुछ जो है प्रॉब्लम्स जो है वो सहयोगी ही सॉल्व कर सकते हैं। इसमें श्री माता जी ने रामदास स्वामी जी का भी एक उदाहरण दिया था। शिवाजी महाराज के एक गुरु थे रामदास स्वामी, और सैफरॉन कलर की एक झोली लेके वो मतलब उनके पास रहती थी। तो शिवाजी महाराज ने उनको बोला था कि आप मेरा सब कुछ ले लीजिए। तो रामदास स्वामी जी ने बोला कि मैं तो डिटैच्ड हूँ, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। और इनकारनेशंस के बारे में भी बोला श्री माता जी ने कि बहुत सारे इनकारनेशंस हुए, दुर्गा जी, महावीरा, श्री कृष्णा, ये सब रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करते थे। फिर मध्य मार्ग के बारे में भी कुछ बोला था श्री माता जी ने। कन्फ्यूशियस, इब्राहिम, ये जो गुरु थे उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया सबके लिए। तो सहयोगी को ये सब चीजें पता होनी चाहिए और उन्होंने अपना अटेंशन जो है वो खुद के लिए लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। हार्ड वर्क करना चाहिए, सब जगह देखना चाहिए, क्योंकि अब आप अंकुरित हो चुके हो, इंटरनेशनल पीपल हो चुके हो, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। और क्योंकि आप स्पेशली सिलेक्टेड हो, तो आप अपना पूरा दिल खोल के काम करो, ऐसा श्री माता जी ने कहा था। श्री माता जी बहुत सुंदर शिल्पा, बहुत सारा ग्रहण किया तुमने तो, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। जय श्री माता जी। और कौन बताएगा? दीप्ति आप शेयर करोगे? ओनम। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। क्या समझा बेटा आपने? मैम सबसे पहले तो श्री माता जी ने सरेंडर करने को कहा। हर चीज को हमें सरेंडर करना है। दूसरा माँ ने हमें ये कहा कि हम अब अंकुरित हो चुके हैं, तो हमें और अपने आप को डीप लेके जाना है। अब वो कैसे पॉसिबल है डीप लेके जाना, इसके बारे में क्या बताया माँ ने? चलिए खुद बताइए, कौन शेयर करेगा ताकि फिर मैं समराइज करूं। जेन्युइन डिजायर होना चाहिए, तो फिर आप डीप जा सकते हो, ऐसा श्री माता जी। शिल्पा ने बहुत ध्यान से सुना। गीता जी आप शेयर करेंगी कुछ?
अनम्यूट करिए माइक को। आराधना। हाँ दी, श्री माता जी ने कहा कि सहज योग में आने के बाद हमें पूरी तरह से उतर के इसको, हम इंटरनेशनली हो चुके हैं और इनको बहुत फैलाना है हमें इनको। और बहुत से लोग सहज योग में आने के बाद भी इस चीज को समझ नहीं पाते हैं और नॉन सहज योगियों से भी उन्हें उन्हें कहा कि उनमें उनमें फिर हमें क्या फर्क रह जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। इसलिए बहुत से लोग ऐसे इसमें आ जाते हैं जो अपने आप को लीडर्स और ये सब समझने लगते हैं और उस पर काम नहीं करते हैं। इसलिए हमें सहज योग में आने के बाद इसे पूरी तरह से स्प्रेड करना है बहुत अच्छे से। एक्चुअली मेरा बैड नेटवर्क आ रहा था, आज वेदर बहुत खराब है, बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रही थी। चलो नो प्रॉब्लम। मैं समराइज कर देती हूँ जितना मैं समझ सकी श्री माता जी की वाणी को। तो स्पीच जहाँ से हमने शुरू की थी सुनी, वहां पे श्री माता जी ये बता रहे थे कि किसी को ये समझ पाना कि श्री माता जी एक आम महिला की तरह बर्तन भी धोती है और सब नॉर्मल काम करती है, उनको देवी समझ पाना लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है। और इस तरह की बात माँ ने कही। और ये माँ जिस आदि शक्ति पूजा में आ रहे थे उसमें माँ लेट हो गए थे और 2 घंटे लेट थे, और उसके बावजूद भी सब शांति से बैठे थे, क्योंकि श्री माता जी ने कहा कि जब नॉर्मली वेस्टर्न लोगों का क्या होता है, टाइम बाउंड होते हैं, ये लेट हो गया, वो लेट हो गया, एवरीथिंग ऑन टाइम, इस तरह से शोर मचाते हैं। लेकिन क्योंकि वो सहज योगी हो गए थे तो उन्हें ये पता था कि जिस चीज का जिस वक्त समय आता है वो उस वक्त ही घटित होती है। स्पेशली जब आपका रियलाइजेशन का समय आया है, उसी समय रियलाइजेशन संभव है। तो माँ ने यहाँ से शुरू किया था और फिर माँ ने ये बताया कि किस तरह से जो सबसे इसमें, अगर हम बहुत, क्योंकि समय कम होता जा रहा है, तो जो सबसे जरूरी बात हमको समझनी है जो श्री माता जी ने बताई कि अब हम मतलब जैसे हम नॉन सहजियों की तरफ तो बड़े काइंड होते हैं और सहयोगियों की तरफ काइंड नहीं होते, उदार नहीं होते हैं, तो ये बहुत गलत बताया श्री माता जी ने। श्री माता जी ने बताया कि मॉर्निंग में पहले माँ ने किसी स्पीच में कहा है कि एकदम से न्यूज नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि उसमें सब नेगेटिव चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे श्री माता जी बता रहे हैं मॉर्निंग में ना पढ़ें, आप इवनिंग में न्यूज़पेपर पढ़ें। आप इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हो गए हैं, आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गए हैं, आपका बीज माँ ने अंकुरित कर दिया है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप जान सके कहाँ क्या हो रहा है, और उसको अपने अटेंशन से, आपका अटेंशन जाते ही वो चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसा माँ ने बताया कि हिटलर की हार माँ के अटेंशन डालने से ही हुई थी। और माँ ने ये भी बताया कि हम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं मेरे अंदर ये बाधा आ गई, ये बाधा आ गई, वो कभी डीप नहीं उतर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहे हैं। माँ कहती है डिवाइन उनको साफ ही नहीं करेंगे। डिवाइन किनको साफ करेंगे? जो डिवाइन का कार्य करे। जैसा क्राइस्ट ने कहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ लाइटिंग अ लैम्प अंडर द टेबल। क्राइस्ट ने कहा था कि कुर्सी के नीचे, मेज के नीचे मैं दिया जला के क्या करूंगा? तो वो क्यों जलाएंगे ऐसे दिया जो प्रकाशित ना करे सबको? तो ये बात माँ ने बताई कि हम जितना तेज का कार्य करेंगे डिवाइन हमको उतना ही क्लियर करेंगे, उतने ही हमारे चक्रों को साफ करेंगे। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं आप अपने स्वार्थ के लिए, सहयोग में सारे चक्र आपके स्वच्छ हो जाए, आपके एकदम बीमारियां दूर हो जाए, आप बहुत अच्छे ध्यान में उतर जाए, बिल्कुल नहीं होगा। तो सहज योग में जैसा हमने माँ की बहुत सारी स्पीचेस यहाँ पहले भी सुनी है, माँ ने बताया है कि जब हम सहयोग का कार्य करते हैं हमारी शक्तियां बढ़ती हैं। डिवाइन अपने बंदों को शक्तियां देगा ही क्यों जो कार्य आगे ना करें, जो डिवाइन का नाम आगे ना फैलाएं। अगर सब सहयोगी हो जाएंगे पूरी दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि सहयोगी बहुत ही शांत होते हैं और बहुत मतलब
अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, चोरी नहीं करते और कोई भी गलत काम, कोई भी ऐसी चीज वो नहीं करते हैं। संत जैसे होते हैं। अब जैसे संतों को अब कन्फ्यूशियस ने धर्म फैलाया, समर्थ गुरु रामदास जो शिवाजी के गुरु थे, शिवाजी ने सब कुछ उनको दे दिया लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। वो डिटैच होते हैं, सब कुछ होते हुए भी उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता। एक ये जिक्र किया था और एक श्री माता जी ने जो मध्य मार्ग का जिक्र किया था कि महालक्ष्मी उत्क्रांति का मार्ग है सुषुम्ना नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी में ही अवतार आते हैं। चार्ल्स डार्विन का भी यही फंडा है कि एक युग के बाद दूसरा युग, जैसे एम्फीबियन, पहले जल में रहने वाले लोग थे, मतलब जानवर थे, फिर उसके बाद जल स्थल चर आए, मेढक आया, ये सब आया जो पानी और जल दोनों में रह सकते थे। तो ये सब कैसे हुआ? जैसे विष्णु जी अवतार लेते हैं और विष्णु जी उत्क्रांति का मार्ग, ये विष्णु मार्ग है, तो ये उत्क्रांति का मार्ग है। तो यहीं पे हर अवतार आते हैं। वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है। हमारी थ्योरी क्या है अध्यात्म की, कि हर युग के अंत में एक अवतार आते हैं। विष्णु जी ने कछुए का भी अवतार लिया, कूर्म अवतार भी लिया, मत्स्य अवतार भी लिया, है ना। तो विष्णु जी के ही सब अवतार आते गए और ये मध्य मार्ग में आते गए। और मध्य मार्ग में ज्यादातर अवतार जो आते हैं वो राजसी परिवारों में आते हैं। जैसे रामचंद्र जी आए, कृष्णचंद्र जी आए, किंतु जो क्राइस्ट है वो चैतन्य थे, वो श्री गणेश जी के अवतार थे। और जो आज्ञा चक्र पे अवतरित हुए तो वो बहुत अच्छी जगह में नहीं पैदा हुए, वो घोड़े के अस्तबल में पैदा हुए, क्योंकि वो चैतन्य थे स्वयं, वो स्वयं चैतन्य थे। तभी तो उनका जो क्रूसिफिकेशन के जो फ्राइडे को क्रूसिफिकेशन हुआ और संडे को वो लोगों को वैसे ही सशरीर मिले, क्योंकि चैतन्य को कोई मार ही नहीं सकता। इसलिए चैतन्य कहीं भी पैदा हो सकते हैं, इसलिए क्राइस्ट अस्तबल में पैदा हुए। लेकिन वो राजाओं के राजा हैं, वो हमारे आज्ञा चक्र पे हैं। जब सब अवतार आ जाते हैं तब क्राइस्ट आते हैं, है ना। तो उसके बाद तो हमें पता ही है क्राइस्ट हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलते हैं, आज्ञा चक्र खोलते हैं, तभी स्वर्ग यानी कि हमारे सहस्त्रार में हम आ पाते हैं, है ना। तो ये श्री माता जी ने बताया कि मध्य मार्ग से हमारा उत्क्रांति का मार्ग चलता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको बहुत 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 ज्यादा समझनी चाहिए कि हमको सहयोग एकदम, माँ कहती है कि मैं क्यों बताऊं सहयोग कैसे फैलाना है। आप क्यों नहीं सोचते हैं क्या क्या तरीके से आप सहयोग फैला सकते हैं? ये हम हर एक सहयोगी की जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारी दीप को प्रज्वलित कर दिया श्री माता जी ने, हमारे बीज को स्प्राउट कर दिया श्री माता जी ने। तो जैसा उन्होंने कहा कि टेबल के नीचे क्राइस्ट ने कहा मैं दिया क्यों जलाऊं, ऐसा दिया मैं जलाऊं ही क्यों जो प्रकाश ना दे। तो हमारे दिए को जलाया गया है, हमको सबको प्रकाशित करना है, हमें वो शक्ति दी गई है। कितनी बड़ी शक्ति है कि एक सहयोगी ऐसे हाथ करके किसी की भी कुंडली उठा देता है, पीठ के पीछे हाथ करेगा, ऐसे करेगा, कितनी बड़ी शक्ति है ये इससे बड़ी कोई शक्ति हो ही नहीं सकती है। तो वो शक्तियां आपकी क्यों बढ़ेंगी जब आप दूसरों को रियलाइजेशन नहीं दे रहे, आप सहयोग का कार्य नहीं कर रहे, आपके चक्रों को बाधित ही रहेंगे। आपके चक्र में अगर कोई बाधा है वो ठीक नहीं होगी अगर आप सहज का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइन आपके चक्रों को क्यों शुद्ध करे, इसलिए आपको वो शक्ति दे दिए। टेबल के नीचे दिया क्यों जलाए डिवाइन, है ना। सो ये इस अमृतवाणी में था जो मुझे समझ में आया और जितना मैं ग्रहण कर पाई। सो और अब समय भी हमारा हो चला है, ध्यान की तरफ हम चलते हैं, बहुत कम समय, 7 बजे तक हमको ध्यान भी करना है खत्म। सो कोई प्रश्न है किसी का? Does anybody have any question? इसमें से जो भी हमने बात की, क्योंकि देखिए श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करनी है। अगर माँ ने कहा रियलाइजेशन का सहज का कार्य करना है तो करिए करिए, और लोगों को जोड़िए इस ग्रुप में, 4-4, 5-5, 6-6 लोग ढूंढिए कि मैं कितने लोगों को रियलाइजेशन के लिए माध्यम बन सकती हूँ।
नहीं तो आपके चक्रों की बाधाएं कभी नहीं जाएंगी। ये स्वार्थ के लिए नहीं है, ये परमार्थ के लिए शक्ति है। आप जितना परमार्थ करेंगे उतना आपका स्वार्थ स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा, ईश्वर कर देंगे, है ना। ठीक है, चले फिर आगे ध्यान की तरफ हम लोग। आंखें बंद कर लेंगे, आंखें बंद, पूरी तरह से आंखें बंद। कोई चल विचल नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई भी हलचल नहीं, कोई विचार नहीं, एकदम शांत हो जाइए। हम सभी अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे, गहरी सांस भरेंगे और हृदय में छोड़ देंगे और जगदम्बा जगदम्बा 12 बार बोलेंगे। माँ का आवाहन करेंगे, हृदय को शुद्ध करेंगे और माँ की शक्तियों के साथ हम ध्यान का आरंभ करेंगे रोज की तरह। गहरी सांस लेंगे। जगदम्बा 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 जगदम्बा। अब अपने चित्त को लेफ्ट हाथ में ले आएंगे और माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, आप ही साक्षात मेरी कुंडलिनी शक्ति है, मेरी कुंडलिनी माँ है। उठिए माँ, जागिए माँ और मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए माँ। अब अपने चित्त को धीरे से राइट हाथ में ले आएंगे और माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, मेरी राइट हार्ट में जो भी पितृदोष है माँ, उसको आप पूर्णतः नष्ट कर दीजिए। श्री माता जी, आप ही मेरी माता है, पिता है, बंधु है, बांधव है माँ। मेरे सभी संबंध आप ही से हैं श्री माता जी। मेरी राइट हार्ट को पूर्णतः स्वच्छ कर दीजिए। बहुत सुंदर। धीरे से फिर से अपने मध्य हृदय में आएंगे और दुर्गा माँ की समस्त शक्तियों के साथ, सभी देवी देवताओं की शक्तियों के साथ, जो हमारे मध्य हृदय में सातों चक्रों के औरास के रूप में विद्यमान है, उन सभी शक्तियों के साथ, सभी गणों की शक्तियों के साथ हम अपने चित्त को उठाएंगे, विशुद्धि चक्र में लाएंगे, आज्ञा चक्र तक लाएंगे, सहस्त्रार चक्र तक ले जाएंगे, ब्रह्मरंध्र में। और एक बार फिर से सर को झुकाएंगे, राइट हैंड से प्रेस करेंगे, स्कैल्प को घुमाएंगे और माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरी ब्रह्मरंध्र को पूर्णतया खोल दीजिए। श्री माता जी, मेरी कुंडलिनी शक्ति को पूर्णतया बाहर आने दीजिए। माँ, मेरी कुंडलिनी शक्ति को
पूर्णतया जागृत कर दीजिए श्री माता जी। स्कैल्प को घुमाएंगे, माँ को कोटि कोटि नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे श्री माता जी का। श्री माता जी आपको कोटि कोटि नमन, श्री माता जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हाथ को नीचे लाएंगे, चित्त सहस्रार पे पूरी तरह ठंडक को महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि कुंडलिनी के छोटे छोटे धागे बाहर आ रहे हैं, ब्रह्म रंध्र से निकल रहे हैं। अब अपने चित्त को 3-4 इंच ऊपर उठाएंगे, अर्ध बिंदु चक्र पे ले जाएंगे। उठाइए चित्त को, अर्ध बिंदु चक्र, इसके और ऊपर बिंदु चक्र, और ऊपर वलय, और ऊपर प्रदक्षिणा, और ऊपर चित्त को ले जाते जाएंगे, आकाश तक ले जाएंगे चित्त। चारों तरफ श्री माता जी का परम चैतन्य व्याप्त है और वो झल रहा है हमारे ऊपर, बरस रहा है लगातार। महसूस करेंगे कि हमारी कुंडलिनी शक्ति ने हमारे ब्रह्म रंध्र से आकाश तक एक पाइप की तरह कनेक्शन स्थापित किया है और वहां से परम चैतन्य हमारे अंदर आ रहा है। आनंद लेंगे परम चैतन्य के आगमन का हमारे ब्रह्म रंध्र पे। और फिर से हम अपने चित्त को उठाएंगे, चित्त एकदम एकाग्र रखेंगे। श्री माता जी ही चित्त शक्ति है। चित्त हमारा ब्रह्म रंध्रों पे ऊपर उठाएंगे, अर्ध बिंदु चक्र 3-4 इंच ऊपर सर के, और ऊपर बिंदु चक्र, और ऊपर वलय, और ऊपर प्रदक्षिणा, और ऊपर आकाश। आकाश के परे चलेंगे अंतरिक्ष, ग्रह उपग्रह, आकाश गंगाएं, नेबुलास, और ऊपर अंतरिक्ष के परे चलेंगे पार ब्रह्म परमेश्वर के पास, ब्रह्मांड के परे, श्री सदाशिव के पास। पूर्ण शांति है यहाँ पे। आइंस्टाइन का टॉर्शन एरिया। चैतन्य से बने हुए श्री सदाशिव के दर्शन करेंगे, चरणों में नमन करेंगे, श्री सदाशिव से क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, हे परमेश्वर, यदि मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। हे शिव, आपका अनेकों धन्यवाद कि आपके आदि शक्ति का अवतरण हमारे लिए भेजा। धन्यवाद करेंगे श्री सदाशिव का और विनती करेंगे, हे परमेश्वर, हमें अपने हृदय में समा लीजिए। और इसके साथ छोटी सी लाइट के रूप में अपने आप को महसूस करेंगे और श्री सदाशिव के बाएं हृदय में समाते चले जाएंगे। आनंद लेंगे इन क्षणों का। धीरे धीरे अस्तित्व में आएंगे, अंतरिक्ष में लौटेंगे, धीरे से आकाश तक आएंगे,
और आकाश में श्री माता जी का परम चैतन्य जो अविरल बह रहा है, महसूस करेंगे अपने चारों तरफ। महसूस करेंगे परम चैतन्य श्री माता जी के श्री चरणों से बह रहा है और हमारे ऊपर गिर रहा है वर्षा की तरह, और हम भीग रहे हैं, भीगते ही जा रहे हैं। महसूस करेंगे परम चैतन्य हमारी कुंडलिनी जो आकाश तक संपर्क स्थापित कर रहा है, उसके माध्यम से परम चैतन्य हमारे अंदर आ रही है। आकाश, प्रदक्षिणा, वलय, बिंदु, अर्धबिंदु और हमारा सहस्त्रार। अब हम अपने शरीर को एक प्रिज्म की तरह महसूस करेंगे। परम चैतन्य लगातार हमारे ऊपर बरस रहे हैं, हम भीग रहे हैं। अब हम अपनी पीड़ा और पिंगला नाड़ी की तरफ भी परम चैतन्य को प्रवाहित करेंगे अपने चित्त के माध्यम से। सहस्त्रार पे चित्त, लेफ्ट हैंड पे चित्त, एक रेखा खींचेंगे, त्रिकोण बनाएंगे। सर से लेफ्ट हैंड पे चित्त को रखेंगे। बहुत सुंदर वाइब्रेशंस आ रही हैं। परम चैतन्य हमारे लेफ्ट हैंड में बह रहे हैं। महसूस करिए लेफ्ट हैंड में परम चैतन्य को। बहुत सुंदर। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे आएंगे। राइट हैंड में महसूस करिए परम चैतन्य को। पूरा चित्त राइट हैंड पे। अगर वाइब्रेशंस नहीं आ रही हैं तो निर्विचारिता का अनुभव हो रहा होगा। चित्त राइट हैंड पे। अब राइट हैंड से सर के ऊपर एक रेखा खींचेंगे, त्रिकोण पूरा करेंगे। राइट हैंड से सर के ऊपर ब्रह्मरंध्र तक फिर से बनाएंगे, ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाएंगे। ब्रह्मरंध्र पे ऊपर से आ रहा है परम चैतन्य लगातार। ब्रह्मरंध्र से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से ब्रह्मरंध्र, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ब्रह्मरंध्र, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ब्रह्मरंध्र। त्रिकोण के रूप में ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे चित्त के माध्यम से। अब हम अपने चित्त को ब्रह्मरंध्र के ऊपर रखेंगे। महसूस करेंगे कि परम चैतन्य यहाँ से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पहले चित्त को आकाश से जोड़े रहेंगे जहाँ से परम चैतन्य हमारे ऊपर बरस रहे हैं। आकाश, ब्रह्मरंध्र से आज्ञा चक्र, परम चैतन्य से अपने चक्र को स्वच्छ करेंगे। आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, मध्य हृदय, नाभि, स्वादिष्ठान, मूलाधार।
ठंडक बहुत महसूस हो रही है मूलाधार चक्र पे। फिर से ऊपर चलेंगे, मूलाधार चक्र पे श्री गणेश जी को प्रणाम करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र पे श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी को प्रणाम करेंगे। नाभि चक्र पे श्री विष्णु लक्ष्मी जी को प्रणाम करेंगे। मध्य हृदय में श्री दुर्गा माता जगदम्बा को प्रणाम करेंगे। विशुद्धि चक्र में श्री राधा कृष्ण जी को प्रणाम करेंगे। आज्ञा चक्र पे श्री यीशु मेरी को प्रणाम करेंगे। और सहस्त्रार पे श्री माता जी के श्री चरणों में प्रणाम करेंगे। बहुत अच्छा ध्यान लगा है। कुंडली चढ़ा के बंधन लेंगे ताकि चित्त से हम विश्व पे कार्य भी कर सकें। कुंडली चढ़ाइए, बंधन लीजिए। चित्त को सहस्त्रार पे रखेंगे और अब यहाँ से हम अपनी ऊर्जा को चारों तरफ फैलाएंगे। सबसे पहले जहाँ पे हम बैठे हैं और बिल्कुल ऊर्जा को फैलाने का वही प्रक्रिया रहेगी, जैसे कि पानी में जब कंकड़ डालते हैं चारों तरफ गोल तरंगे फैलती हैं, उसी तरह से चित्त को हम फैलाएंगे। सहस्त्रार से जहाँ पे आप बैठे हैं वहां पूरे चित्त को फैलाइए। ड्राइंग रूम में अपने ले जाइए, अपने सब बेडरूम्स में ले जाइए, किचन में ले जाइए चित्त को, अपने घर की एंट्री पे ले जाइए, सब कमरों में चित्त को ले जाइए। अपनी पूरी कॉलोनी में ले जाइए चित्त को। अपने पूरे शहर में ले जाइए चित्त को। पूरे भारतवर्ष में चित्त को ले जाएंगे। भारतवर्ष में मूलाधार और सहस्त्रार विश्व का है। मूलाधार महाराष्ट्र है, सहस्त्रार हिमालय है। पूरे भारतवर्ष में चित्त को ले जाएंगे। भारतवर्ष के नक्शे पे अब अमेरिका पे चित्त को ले जाएंगे। विशुद्धि है ये। अफ्रीका, रशिया, एशिया, स्पेशली चाइना एंड जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी देश। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, पूरे विश्व के नक्शे पे चित्त को घुमाइए। माँ से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, हमारी सहस्त्रार से निकली हुई ऊर्जा विश्व कल्याण के लिए प्रयोग हो श्री माता जी। ऐसी प्रार्थना हम आपके श्री चरणों में करते हैं। माँ, जहाँ भी हमारा चित्त जाए वहाँ पे परम चैतन्य अधिक से अधिक लोगों को सहयोग में ले आए और इसके लिए हमको माध्यम बना लें श्री माता जी।
अब इस प्रार्थना के साथ अपनी अब पर्सनल प्रार्थना, जैसा कि हम रोज करते हैं, हमारे लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड की विशुद्धि से हम किसी भी व्यक्ति का नाम जिसको हम वाइब्रेशन देना चाहते हैं, सद्बुद्धि देना चाहते हैं, जो भी हमें परेशान करता है या जिसके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, उसका नाम जय श्री माता जी करके 7 टाइम्स ऐसे बंधन और आंखें बंद करके श्री माता जी की तस्वीर को देखते हुए बंद आंखों से उनकी तरफ वाइब्रेशंस भेजते हैं और फिर ऐसे करके गर्मी को निकालते हैं। अब हो गया होगा, ऐसे करके हाथ झाड़ दे, गर्मी निकाल दे। जय श्री माता जी। श्री माता जी को धन्यवाद करेंगे और श्री माता जी से क्षमा याचना भी करेंगे। ये परम पावनी माँ, यदि इस ध्यान के दौरान कहीं भी कोई भी भूल हो गई हो माँ, किसी के भी अंदर कोई भी कर्ता भाव आ गया हो श्री माता जी, उसके लिए हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें परमेश्वरी, क्षमा करें श्री माता जी, क्षमा करें श्री माता जी, क्षमा करें श्री माता जी। सभी का दिन बहुत शुभ हो, सबके अंदर श्री माता जी की प्रेरणा आशीर्वाद बहता रहे। हम जो बोले, जो हम सुने, जो हम देखें, जो भी हम करें, वो सब श्री माता जी की इच्छा अनुसार हो, ऐसी कामना और ऐसी शुभेच्छा के साथ इस सत्र का ही समापन करेंगे और कल फिर जय श्री माता जी।